जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक ट्रेड मिनिस्टर साहब हैं। वो बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं अमेरिकन्स को। उन्होंने कहा भाई ये बात छोड़ दो कि हम जो है ना वो गन पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। सॉरी, वी कैन नॉट डू दिस। उन्होंने अमेरिकन्स को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ, आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। ये उन्होंने बात की है। ये मैं आपको सुनाता हूँ, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। इंटरेस्टिंग थी। has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. And I think if So plainly, you want to be told that you can't be friends with Russia. somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. Or somebody tells me tomorrow I can't work with Kenya, it's not acceptable to me. So I think we are all in it together. The decision whether to buy a particular product from a country is something that the entire world will have to take a call on. I don't think in समझ रहे हैं बात? सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। दैट्स व्हाट इज सेइंग। हम अपना ताल्लुक जो है, ठीक है ना जी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये एक चीज़ है। मतलब वो कह रहे हैं परवाह ही को नहीं है हमें। वो कह रहे हैं हमें परवाह ही कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं आप सिंगल आउट कर रहे हैं। हमें सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वाई वाई यू आर यू नो पुटिंग अस इन द टॉक। वो ये इस चीज़ के ऊपर भी गुस्से हैं इंडियंस। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो। और अगर तुमने इसी बात को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं हम इस पे नहीं। आपके ये भी सुनिएगा एक। India has ever decided who its friends will be. ये नहीं था, ये था मेरा ख्याल है। India has ever now these are so I was reading in today's paper Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, I think, and we've sorted out the issues with Germany. States, of course. I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? Well, it's a specific subsidiary in relation to Rosneft. We also have a subsidiary in India of the Rosneft. Well, come and talk to us. My door is always open. Look, the only thing I'd say about speed is the world is, it's just a fact that we're interconnected now. We all tend to talk about goods when in trade, and lots of trade negotiations get a bit obsessed with goods, and sometimes it feels like it's the economies of 50 or 100 years ago rather than the economies of the next 50 or 100 years. And I want to go, if somebody's creating, for instance, a new video game, which will be if it's going to be a AAA game, it'll be a multi-billion.
अब वो कह रहे हैं कि आप हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। अच्छा, बात तो उनकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, वो वैलिड है बात, लेकिन फंस गए हैं वो। ये भी सुनिएगा। hurry, and we don't. And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that's how deals are done these days. It's a deadline. I don't think so. Tariffs come in midnight on this date. Take it or leave it. India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We're looking how to overcome that. We're looking at newer markets. We're looking at a stronger demand impetus within the Indian economy. So we have a very resilient structure, 1.4 billion people. वो दे आर ब्रैगिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, और उनको गुस्सा चढ़ता है अमेरिकन को कि ये हमें जो है ना वो सुना रहा है कि जी 1.4 बिलियन है, दिस है, दैट है। बहरहाल ये एक इनकी लड़ाई है, लेकिन इंडियंस ने दे आर कॉलिंग आउट कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यूएस ने सैंक्शन की है रशियन ऑयल जायंट रॉसनेफ्ट, बट उसने सेपरेट जो डील की है जर्मन जो सब्सिडरी ने उनके साथ। अब जर्मन गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव दे दिया, हमें नहीं दे दिया, वो कह रहे हैं। तो ये क्या बात है? ये इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनका नाम है पीयूष गोयल साहब। तो ये बेसिकली और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए ताल्लुकात को नहीं देखते। सो मुझे ये जो चीज़ है ये वो अच्छी नहीं लगी कि हमें कोई कल को ये कहे कि तुम ये करो और ये ना करो। सो अब देखना ये है कि इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं, इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी लड़ाई जो है ना वो बन गई हुई है। ये एक बड़ी लड़ाई है, वो इस बात के ऊपर अड़क गए हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी मर्जी करनी है। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल कल उन्होंने कनाडा को कह दिया कि कनाडा ने हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं वो क्या कोई बात कर दी है, तो उन्होंने पकड़ लिया। वो कहते हैं भाईजान हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी रात को सोते सोते उसने डील कैंसिल कर दी उनके साथ, रात को सोते सोते डील ही कैंसिल कर दी सारी। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्रम्प साहब जो है ना उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अनप्रोटेक्टेबल। ठीक है जी। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका से मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। ये भी मैं पढ़ रहा था। मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 15-16% है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं हम जल्दी में कोई ट्रेड डील नहीं करने जा रहे, हम लॉन्ग टर्म लेंगे, टाइम लेंगे, हम लॉन्ग टर्म टाइम लेंगे, जल्दी में डील्स नहीं करेंगे। और कोई ऐसी डील भी नहीं होगी जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान हो। अब वो मेरे ख्याल है बर्लिन ग्लोबल डायलॉग है वहाँ पे थे। और अब 50% तो टैरिफ हैं, लेकिन इंडियंस बंद कमरे में बैठ के मामला ठीक करना चाहते हैं। और इसको मैं ये भी आपको बताऊं, जैसे चाइना पे वो और सारा टैरिफ लगाने लगे हैं। सो कि कैसे मैनेज करेंगे? क्या इंडिया ने फैसला कर लिया है कि हमने सख्त लाइन लेनी है? दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। क्या ये है वो सब कुछ? क्या वो ये है सब कुछ? ये एक सवाल है। अब इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा और किस तरह होगा। मुझे लगता ये है कि या तो जिसे वो कहते हैं ना एक 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 डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि इंडिया की डील नहीं हो रही, यहाँ तो ये नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है डील तो हो नहीं रही, तो चलो जैसे तैसे फिर ये एक चीज़ बनाओ। और अगर डील हो रही है तो फिर ये चीज़ें
वो समझ रहे हैं कि हमें थोड़ा स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। अब अमेरिका की जो ट्रेड, अमेरिकन ने जो कुछ किया है, वो एक ही बात कह रहे हैं, द इंडियंस आर स्केलिंग बैक ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया। इंडिया ने अभी तक इस पे कुछ नहीं बोला। वो पहले उसने कहा कि वो तेल नहीं खरीदेगा, फिर उन्होंने कहा, इंडियंस ने, फिर अमेरिकन ने कहा कि वो कम तेल खरीदेंगे। मैं जो सुना, मुझे समझ आए। अब ये तो फिर डिपेंड करता है मोदी साहब के ऊपर और उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। मोदी साहब एंड हिज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह सकते हैं कि जनाब ये मोदी साहब जो है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना वो आपके सामने आएगा। किस शक्ल में आएगा, क्या आएगा, आई डोंट नो, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी है कि कुछ ना कुछ होगा। और ट्रम्प साहब जो है ना, वो हर चीज़ भगाने के चक्कर में इंडिया से, उनको ये है कि चीज़ें भाग जाएं इंडिया से और मैं बताऊं कि देखो मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। बहरहाल इस चीज़ को देखते हैं कि क्या अब इसका रुख क्या बनता है, इस सारी बात का रुख क्या बनता है। क्या रुख यही बनेगा जो है, या कि कोई और रुख बनेगा, या कोई और ट्रेंड बनेगा। ये तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या इसकी वो डायरेक्शन तय होगी और किस तरह की तय होगी। लेकिन अगर अमेरिकन और लेकिन एक चीज़ है, इंडियंस डायरेक्ट नहीं कुछ बोलते। कोई ये डायरेक्ट बात नहीं बोली इन्होंने कि इंज कर देंगे, वो कर देंगे, छड़ांगे नहीं। वो बड़े आराम से, मैंने तो एक चीज़ नोट की है, डॉक्टर जयशंकर ने ट्रैवल करना ही लंबा चौड़ा बंद कर दिया और बोलना ही बंद कर दिया। ये पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। वो बोलते थे हर जगह, अब वो नहीं बोलते उस तरह, और वेट करते हैं और समझते हैं कि यार ये थोड़ा सा लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा और किस तरह होगा, चीज़ें किस तरह चलेंगी। अब पाकिस्तान तो क्लियर है, हमें तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तो इस चीज़ में अंदर खाते तो खुश है, इंडिया मुश्किल में फंसा हुआ है। जैसे हमारे दोस्त इंडिया में खुश होते हैं, पाकिस्तान मुश्किल में फंस जाए तो। लेकिन देखना यह है कि क्या इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार रशिया के तेल की बात कर रहा है, वो अभी तक तो देखें ना, कोई इंडिया स्पेस नहीं दे रहा उनको। देर इज नो स्पेस विच इज इंडिया गिविंग देम। कोई एक स्पेस भी नहीं दे रहा। अमेरिकन दे रहे, अगर वो स्पेस दे रहे होते तो वो ये कहते हैं ना कि हम जी ठीक है जर्मनी को स्पेस देते हैं, इंडिया को भी दे देते हैं, तो इंडियंस इस पे खुश हो जाते हैं। बहरहाल ये एक इंडिया को टफ टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मैसेज ये जा रहा है या बात ये हो रही है कि पाइन इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमा रही है। वो रशिया से तेल जो है ना अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सिर्फ नहीं ले रही, समझ रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे, वो इसको खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए। इस चीज को वो एक एक एंगल से देखते हैं। अब लेट्स सी, ये भी एक समझो चैलेंज है बहुत बड़ा, ये भी एक चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है वो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ये चैलेंज कहीं नहीं जा रहा। अब वो एक बनेगा फ्रेमवर्क कि हाँ जी इंडिया के साथ, कि हो सकता है इंडिया के साथ थोड़ी सख्ती मजीद करें अगर वो कनाडा के ऊपर कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेड मामलात नहीं होते। लेकिन ये है कि अमेरिका के अंदर ओपिनियन ये है कि यार आप एलआई के साथ ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये चीज़ बेसिकली इंडिया अमेरिकन को पीछे करती है, ये चीज़ जो है वो अमेरिकन को थोड़ा पीछे करती है। वो कहते हैं यार ये नहीं, ये चीज़ सही नहीं, इससे नुकसान हो रहा है। देखते हैं
लेट्स सी मोदी साहब का जादू चल रहा है, क्योंकि मोदी साहब आसियान की मीटिंग में भी नहीं गए मलेशिया, और मलेशिया जो है ना जाना, मलेशिया ना जाना इज़ अ मैसेज कि भाई साहब मुझे कोई ट्रम्प से मिलने का शौक नहीं है, मैं ट्रम्प से तब मिलूंगा जब, देखें इसमें सिग्नल है, मैं ट्रम्प से तब मिलूंगा जब तुम्हारी मेरी डील हो जाएगी, जैसे मैं चाइना से ऐसे मिला था। समझ रहे हैं? मोदी साहब को मौका भी होगा, भाई मैं तो अमेरिका गया था तुम्हारे घर, लेकिन तुमने हमारा ख्याल नहीं किया, हम वापस आ गए हैं। अच्छा जी, ये समझ रहे हैं? तो वो एक इस चीज़ को अब थोड़ा सा दे आर मेकिंग इट, वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। लेट्स सी इसमें, क्योंकि वो जिस तरह शी जिनपिंग को तभी मिले थे सही तरह मोदी साहब जब उन्होंने चाइना से पूरी डील कर ली थी, तो वो अमेरिकन से भी तभी मिलना चाहते हैं, नज़र तो यही आता है, क्योंकि आसियान का दौरा उन्होंने मिस किया है, और आसियान का दौरा मिस करने से मुराद, वो भी 3 दिन पहले फैसला करके मिस किया है। ये पैगाम दिया है अमेरिकन को कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है। सिग्निफिकेंट चीज़ है, कोई मजाक चीज़ नहीं है, क्योंकि मोदी साहब के बारे में घर में ये इंप्रेशन आ रहा है कि ही इज़ अंडर प्रेशर, वो अंडर प्रेशर है। सो इस चीज़ को वो कह रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं अंडर प्रेशर नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करूँगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अंडर प्रेशर है या क्या है या किस तरह।